A lot of people have joined. We are here joined by Mr. Kapil Nagal from the Volt team. Welcome, Kapil. Welcome to Asset Plus and welcome to this webinar. So, thanks for having me essentially for the webinar here, for conducting this. Before I start, I'll start with what Volt Money is, what we do, quick introduction about me, and ये value proposition for our mutual fund distributor partners, Asset Plus पे क्या है, and how it works is what I'll be explaining through. Please treat this as a conversational thing कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन आए in this कितना भी बेसिक हो, प्लीज पोस्ट इट इन द चैट. वील स्टॉप इन बिटवीन, बीच में हम लोग रुक के एक बार सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे. मेरे पास एक FAQ सेक्शन भी है जहां पे आई विल टेक यू थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस वील हैव द लास्ट 10 मिनट्स जस्ट फॉर Q&A. सो एवरीवन, जो भी क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग इन बिटवीन, एक बार आप चैट में पोस्ट कर दें. विल टेक ऑल क्वेश्चंस वन बाय वन. ठीक है. Now, starting with the first thing, Volt Money is a fintech that provides loan against mutual funds, right? Instant cash against mutual fund is the idea. At the moment, we have more than 5,000 partners across 24 states, and we have stopped redemption more than 2,000 crore, right? So it's a very well-known platform. And what today's webinar is majorly is this platform now is also available on Asset Plus, right? So Asset Plus essentially has made this important integration with Volt Money and has enabled all its partners, जितने भी partner Asset Plus पे हैं, उन सब के लिए with a single click, this facility is now available directly on the platform, and I'll show to you how you can use it on the Asset Plus platform, right? So that is the idea. Just to start with, मेन चीज है कि whenever Asset Plus partners, it's not कि सब लोगों से partnership हो जाती है. There is a very due diligence done, and I'm very pleased to tell you that Volt Money won the most preferred partner in the category of loan against mutual funds in a program done by Economic Times in Mumbai. It's a conference done by Economic Times in association with FFF, Financial Freedom Fraternity, where we were awarded the most preferred partner in loan against mutual fund category, right? Above all banks and everyone else. So to make sure that you are working with one of the best players in the country, right? To start with Mera background, I'll give you a quick background about myself. I am from Jodhpur, Rajasthan. So anyone from Jodhpur, please feel free to say hi. I have more than 10 plus years of banking experience in working in financial domain as part of PwC, which is a very big audit firm. हम सबको पता होगा कि PwC, Deloitte, there are 4 audit firms majorly in the country. And last, I was part of the IDFC First Bank team, which was handling digital lending. तो जितना भी डिजिटल लेंडिंग जो बैंक करता था, उसकी एक सेपरेट टीम थी, and I was part of that team. And with 10 years of experience, I come from IIT BHU, which is Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University. So anyone from Uttar Pradesh, Varanasi especially, please feel free to chat to me, right? So quick background about myself, and end-to-end experience in lending essentially, right? Before I start with what the product is, first question that I want to take head on is essentially कि लोग कितना टाइम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, राइट? सो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि टुडे एवरीवन व्हाट दे आर डूइंग एसेंशियली इज दे आर सेइंग कि वी आर इन्वेस्टिंग पीपल्स मनी फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? अगर आप पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो 25 ईयर्स में अगर आप 10,000 का SIP करोगे तो आपके पास इतने करोड़ हो जाएंगे. अगर आप 20,000 का SIP करोगे तो 10 साल में इतने लाखों रुपए हो जाएंगे. पूरा कैलकुलेशन इज अज्यूमिंग कि अगर आप मनी को 15, 20, 25 साल तक इन्वेस्टेड रखोगे तो आपका एक्स अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, करोड़ों में वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, विच इज ट्रू. म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इन द कंट्री एट द मोमेंट, विच इज everyone is aware about it, correct? But what is happening is कि 50% of the people redeem their mutual funds within a year and 70% redeem within 2 years. ठीक है? This is not me saying, this is a study by AMFI, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड जो अपना कंट्री का है, उनका एक स्टडी है जो इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश भी हुआ है, वेयर दे क्लियरली से कि 50% ऑफ द इन्वेस्टर्स रिडीम देयर म्यूचुअल फंड्स विद इन अ ईयर एंड 70% विद इन 2 years. एंड दिस इज नॉट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, दिस इज रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो. ठीक है? तो एक चीज क्लियर है कि जो हम वेल्थ क्रिएशन कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट हैपनिंग across a long period of time for mutual funds, right? अगर आप LIC या PPF देखेंगे, the product comes with the lock-in of 10 years, 15 years. Let's say PPF है 15 साल का है, 7%, 7.1% rate of return होता है. LIC is around 4 to 5%, mutual funds around 12%. But
पीपल मेक मोर मनी इन LIC पीपे वर्सेस म्यूचुअल फंड्स बिकॉज वहां पे वो 10 साल तक स्टिक करके रहते हैं. इट इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर देम टू बी देयर. वो जबरदस्ती सही. LIC अगर आप लेते हैं तो इट क्लियरली टेल्स यू कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, अगर आपको पैसा चाहिए तो लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी ले लीजिए, बट यू कैन नॉट रिडीम. म्यूचुअल फंड का बिगेस्ट इशू क्या है कि इट वाज सोल्ड ऑन प्रीमाइस की जब पैसा चाहिए आप रिडीम कर सकते हो. तो उसको 10,000 चाहिए हो, 25,000 चाहिए हो, 25 लाख चाहिए हो, 25 करोड़ चाहिए हो, फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माइंड नॉट सेलिंग लैंड. कोई जमीन नहीं बेचता, PPF से आप निकाल नहीं सकते, LIC से लोन लेना बहुत टफ है, बट म्यूचुअल फंड बहुत इजीली रिडीम हो जाता है. उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो 50% का रिडेम्पशन नंबर दिख रहा है एक साल के अंदर, वो उसी का रिजल्ट है कि जैसे ही लोगों को जरूरत पड़ती है दे रिडीम देयर म्यूचुअल फंड्स एंड वी आर हियर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट. सो अब एक कस्टमर जब हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया, what we told him is कि if you are investing over time you will be able to achieve a financial goal, right. आप वो फाइनेंशियल गोल अचीव करते हैं, बट जब वो पैसा निकाल रहा होता है तब वो ये रियलाइज नहीं करता कि आज मैं जो पैसा निकाल रहा हूँ उसकी कॉस्ट क्या है, राइट. If a person today, and I will like to take you through an example on how World Money helps you in this. If a person today takes out 10 lakh rupees, right? In his mind, he is taking out 10 lakh rupees जो भी उसने SIP करके लमसम करके पैसा इन्वेस्ट किया है, he is withdrawing that money from his account. Very simple as that. ठीक है, मैंने 10 लाख रुपए निकाले. What they don't realize is as soon as you redeem, आपका 10% टैक्स लग जाएगा. सेकंड, ये पैसा अगर 12% से भी निफ्टी का ग्रोथ रेट लेके अगर हम बोले, वेरी सिंपल, 12% से भी ग्रो कर रहा है तो इट विल रीच टू अराउंड 27.7 लाख रुपीज. ठीक है, मैं 15% के ग्रोथ रेट भी नहीं ले रहा हूँ विच इज अ नॉर्म इन द कंट्री एट द मोमेंट. आई एम नॉट टेकिंग हायर रिटर्न के म्यूचुअल फंड्स लाइक क्वांट, पराग पारेख जो 22-25% का CAGR दे. आई एम टेकिंग बेयर मिनिमम निफ्टी का ग्रोथ रेट ऑफ 12%. अगर कोई 10 लाख रुपए रखता है 12% पे, एट द एंड ऑफ 10 years ही इज लेफ्ट विद 27.7 लाख रुपीज. अगर उसको आज 10 लाख की लिक्विडिटी चाहिए और वो वोल्ट का लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ले भी लेता है, राइट, एंड ही यूजेस इट फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 years, he'll be just charged with 4 lakh rupees interest. It is such a low interest rate product, and net he'll be able to gain 23 lakh rupees. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक कस्टमर को समझा पाए कि जब आप पैसा रिडीम कर रहे हैं, यू आर नॉट रिडीमिंग 10 लाख रुपीज, यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट ऑन 27.7 लाख रुपीज विच इज अवेलेबल टू यू आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. वो 27 लाख रुपए आपका हो जाएगा अगर आज आप अभी 10 लाख रुपए नहीं निकालेंगे. उससे अगेंस्ट लिक्विडिटी चाहिए तो वोल्ट मनीज क्रेडिट लाइन इज देयर विच यू कैन यूज इट. सो वी हैव टू टीच द कस्टमर दैट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी सही है. And this is what has enabled us essentially to basically stop redemptions worth 2,000 crore in the last 1 year, right? Like a customer essentially invest to reach a financial goal, right? That financial goal could be different times, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अलग-अलग गोल के हिसाब से. If उसको शॉर्ट मीडियम टर्म की नीड आए तो वो रिडीम करके अपना पूरा जो गोल रीचिंग कैपेबिलिटी है वो खोए ना, राइट. इंस्टेड ऑफ रिडीमिंग म्यूचुअल फंड्स, he can pledge mutual funds and get an instant credit facility within 5 to 10 minutes, and we'll show to you how. So Volt Money here comes as a support system that customer का AUM जो सबसे important है growth के लिए, compounding सबसे, वो कभी गिरे ना for short or medium term needs. Redemption should be only if we have planned a redemption and there's a redemption happening. There should be zero unwanted redemptions for liquidity needs, right? That is the objective that we are going ahead with, right? So that is what Volt Money comes here to support short-term, medium-term cash needs of customers without any query, right? अब जनरली लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट? दिस इज, ये कहना बहुत आसान है कि 25 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते रहो और आपको पास इन द एंड आपको X करोड़ मिल जाएगा, ठीक है, आपको 10 करोड़ मिल जाएगा, आपको 5 करोड़ मिल जाएगा. बट 25 साल तक in a person's life, that is 25 years. Let's say a working professional starts earning at 25 years. In 25 years, he'll be 50 and he would have gone through his whole life where there would be home renovation happening. There would be wedding expense happening across his relatives, internal family में, all those things. Medical expenses भी across इंसान की lifetime में आते रहते हैं, whether it's serious, non-serious, whatever it is. Education expense, which is a very clear financial goal कि child's education के लिए लोग आज invest कर रहे हैं. वो अगर उसके लिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, किसी को वीजा बेचना है, राइट, वीजा में अगर आपको अकाउंट में दिखाना है तो आप पूरा म्यूचुअल फंड रिडीम क्यों कर रहे हैं? इफ यू नीड मनी फॉर जस्ट 10-20 days. बिजनेसमैन के लिए वर्किंग कैपिटल,
as a business is growing, he wants to do SIP, but he wants to keep the capital also. उसको पैसा होगा तभी वो सामान खरीद पाएगा. जितने भी लोग अगर बिजनेस वाले कस्टमर्स हैंडल करते होंगे, यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इज लिक्विडिटी फॉर देम. वो SIP का अमाउंट कम रखेंगे बट अपने अकाउंट में पैसा ज्यादा रखेंगे, बिकॉज उनको लगता है अगर मैं अपफ्रंट पे करूंगा, लिक्विडिटी रखूंगा, तो मैं अपना बिजनेस ज्यादा ग्रो करूंगा. Travel expense. If you want to travel today, you can't wait 25 years for the mutual fund to redeem. You will redeem now. And उसके लिए अगर हम क्या करें, so Volt solution is for all these needs or any other need that you think a customer will have requirement. ठीक है, सारे टाइप की नीड की लिक्विडिटी के लिए Volt Money's credit line is there. Now, what is the credit line? तो बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रोसेस, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये है क्या. ठीक है, दिस इज एसेंशियली it's a credit line facility, not a term loan. And a credit, so there are two types of loan, which is a credit line facility and a term loan. First thing is, credit line is much better than term loan. Credit line facility जो होती है, ओवरड्राफ्ट होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज्यादा कस्टमर फेवरिंग होती है, एंड दैट्स व्हाई वेरी रेयर टू फाइंड अ क्रेडिट लाइन फैसिलिटी. बैंक्स बहुत रेयरली किसी को क्रेडिट लाइन फैसिलिटी देते हैं. आफ्टर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एट अ वेरी हाई रेट क्रेडिट लाइन फैसिलिटी मिलती है. और इफ यू हैव सिक्योर्ड लोन विच इज लाइक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, आपको वो मिलती है. अदर थिंग इज टर्म लोन विच इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड, आपको हर महीने EMI देना पड़ता है. बट दिस इज अ क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, एंड द फर्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ क्रेडिट लाइन फैसिलिटी इज ओनली पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट विड्रॉ. ठीक है, दैट इज द मेन एंड फर्स्ट पॉइंट दैट इज देयर, राइट. अगर आप देखेंगे, अगर आपने 5 लाख की क्रेडिट, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको आगे, बट अगर आपने 5 लाख की क्रेडिट फैसिलिटी सेट की है, राइट, तो आप जितना उसमें से विड्रॉ करेंगे उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा. इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, देयर विल बी नो इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख की फैसिलिटी है बट 10,000 रुपए ही निकाले हैं, आपका जो भी लोअर इंटरेस्ट रेट है विच इज 10.49, दैट इज ओनली अप्लाइड ऑन अमाउंट विड्रॉन विच इज 10,000 रुपीज. अगर आपको कल और पैसे चाहिए और आपने और 20,000 निकाल लिए, तो आपका इंटरेस्ट 30,000 पे लगेगा, उस 5 लाख पे नहीं लगेगा. यू कैन मैक्सिमम विड्रॉ 5 लाख वेन एवर यू वॉन्ट, बट जितना आपने आज निकाला हुआ ना एंड ऑफ डे पे, उस पे ही इंटरेस्ट लगता है, बाकी किसी पे नहीं लगता, राइट. सेकेंड थिंग, लो इंटरेस्ट रेट. अगर आप देखेंगे, इंटरेस्ट रेट हैज टू बी लो फॉर पीपल टू मेक सेंस. अगर कस्टमर को लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना है, राइट, इफ ही डज नॉट हैव टू रिडीम, the rate of interest of the loan should be lower than the rate of interest of mutual funds. Very simple. ठीक है, म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. दिस इज अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.49%, which is 1.5% lower than the cost return of mutual funds. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट इन द मार्केट जो आप देखेंगे, राइट. एंड दिस इज इवन लोअर देन द रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड. सो दिस इज द ओनली लोन where you're essentially in the net earning, the customer is earning from taking this loan rather than doing redemption. So very low rate of interest and processing fee. I'll show you separately in the next slide. Third, how do you do it, right? First is, like mutual funds have now jumped on to 100% digital process. I know a lot of people might have done loan against securities earlier and they would have done it in 50 pages का आपने document sign किया होगा. It would have taken 15-20 days. With Volt Money, when you do via Asset Plus, it takes you just 5 minutes to complete the process, right? There are partners who have done the process in 7 to 8 minutes, end to end complete, right? It's a 100% digital process where no upload is required, no document upload, no cash upload, no Aadhaar upload. We do not require anything, right? All the process will be done through OTP, and I'll show it to you later after this. Fourth question, right? नेट बात यह है कि मुझे कितना पैसा मिल सकता है मेरे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट. तो इट्स वेरी सिंपल. देयर आर मोर देन 5,000 प्लस स्कीम्स अप्रूव्ड विद अस. ठीक है, 5,000 प्लस स्कीम्स का मीनिंग है 95% ऑफ द म्यूचुअल फंड AUM इज अप्रूव्ड. तो 95% ऑफ व्हाट द कस्टमर हैज विल बी अप्रूव्ड विद अस. वेरी न्यू NFOs or very low AUM mutual fund schemes are currently not approved, but as the AUM increases, it also gets approved, right? But at the moment, 5,000 plus approved schemes we have, right, which covers 95% of the AUM. How much we give? On equity mutual funds, we give up to 50%. On debt, we give up to 80%. On liquid, we give up to 90%. ELSS, balance advantage, is classified under equity only, hence is given 50%. ELSS units greater than 3 years are only considered, right? Now, why 50%? Right? Why 50% is because RBI at the moment says across India, regulatory requirement है कि आप 50% of present value दे सकते हो.
नॉट द प्राइस स्पॉट प्रेजेंट वैल्यू जो कल ईओडी एनएवी है ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट, उसके बेसिस पे जो भी आपका अमाउंट है पोर्टफोलियो उसका 50% आप दे सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ कस्टमर हैज 10 लाख रुपीज ऑन म्यूचुअल फंड, उसको 5 लाख तक की लिक्विडिटी में आज दे सकता हूँ वेरी सिंपली. इफ द कस्टमर हैज 10 लाख रुपीज ऑफ डेट, मैं 8 लाख तक की 8 लाख रुपीज आई कैन गिव लिक्विडिटी. इट्स अ कॉम्बिनेशन. आई कैन गिव 8 प्लस 5 टू 30 लाख की लिक्विडिटी. हाउ मच कैन यू गेट? 50 to 80% ऑफ एनएवी ऑफ द पोर्टफोलियो. एंड ये सब आपको याद नहीं रखना है, ऑटोमेटिकली इन द प्रोसेस हो जाता है. फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट is there is no prepayment or foreclosure charges period. ठीक है, आज if you take out money today और कस्टमर ने आज पैसा लिया, कल वापस दे दिया, उसका 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा. आपने आज लिया 10 दिन में वापस दे दिया, आपका 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा. अगर आपने आज लिया और पार्ट्स में ऑफर दिया, तो जैसे जैसे आप वापस देंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम लगना शुरू करेगा. जैसे ही पैसा वापस आया उस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लगता है. So there is zero prepayment foreclosure charges. It's like a proxy savings account for your customer. कि म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टमेंट तो है ही है, वो ग्रो कर ही रहा है, बट मुझे लिक्विडिटी है. तो लेट्स से मैंने सेट करके रख दी 5 लाख रुपए की. व्हेनेवर आई नीड मनी आई सिंपली पुल इट आउट, रीपे. मेरा एक प्रॉक्सी सेविंग्स अकाउंट टाइप हो गया, वेयर आई कैन सिंपली जस्ट टेक आउट, रीपे एनी टाइम, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. नो फोरक्लोजर चार्जेस, नो प्रीपेमेंट चार्जेस, जो बहुत कॉमन है आपके टर्म लोन, पर्सनल लोन, एफडी पे. Second last and most important point, redemption takes T plus 2 working days. We process the money and give the money in 24 hours. तो अगर आप सुबह 10 बजे करेंगे, वर्किंग आवर्स है, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग टू गेट दिस लाइव फॉर हॉलीडेज ऑल्सो, बैंक हॉलीडेज ऑल्सो. बट अगर आपने सुबह 10 AM, let's say today you have processed the loan, by 7 PM you will have the money in the account given you have completed the process. So the money comes before redemption. ठीक है, पैसा कस्टमर के अकाउंट में रिडेम्पशन से पहले ही आ जाएगा, एंड दैट इज ओनली अवेलेबल. सो देयर इज नो रीजन फॉर द कस्टमर टू डू रिडेम्पशन विद दिस. लास्ट पॉइंट, टू सर्व ऑल योर कस्टमर्स, मिनिमम अमाउंट दैट वी डू इज 25,000 एंड मैक्स लिमिट इज 10 CR. 10 CR भी नहीं है, अगर उसके ऊपर भी है तो कर सकते हैं, बट द प्रोसेस में थोड़ा वेरिफिकेशन आ जाता है टू वेरीफाई. बट if a customer has just 50,000 rupees of mutual funds or 20 CR, accordingly we can do all those customers digitally, right? That is the idea. अब किस किस के लिए वी करंटली सपोर्ट पैन टाइप इक्वल्स टू इंडिविजुअल, चाहे वो सिंगल होल्डिंग हो, एएस हो, यूनिफिकेशन हो, वी डू एवरीथिंग. Corporate and HUF currently are physical process, so at the moment we are not able to support because there is no way to do KYC digitally. But very soon we are working on it, and we'll also be able to get corporate and HUF process with gold also. But at the moment, all individual cases, AS with single holding AS, all types are supported here, right? So all we do. Now, how does Volt provide the money? We have partnered with two AAA rated lenders, which is Bajaj Finance and Tata Capital. Both are very well trusted, very big lenders. There you can be 100% safe. What Volt does is provide you the layer in between. कि अगर आपको process करना है, it takes you 5 to 10 minutes to do the process. 100% servicing is done by Volt. But balance sheet जो use हो रही है यहाँ पे वो बजाज और टाटा कैपिटल की है. If you want to verify independently, you can go to them verify. But अभी तक जितने भी आपने देखा 2000 crore में, none of the partners have faced an issue with us. So you can be 100% assured that your money is safe and you're working with a very trusted partner. Right? How much is the interest rate? The current interest rate is 10.49% per annum on reducing balance. So if you want to borrow 1 lakh rupees for a month, approx cost for that is 862 rupees. As simple as that. That's it. So if you borrow 1 lakh rupees for 1 month, you have to pay just 862 rupees. You can repay after 1 month, and automatically your interest would be zero after that. Let's say if you take 1 lakh rupees for 10 days, it will be approximately 250, 260 rupees, one third of this. So the cost of 1 lakh rupees is essentially how you can say simply 250, 260 rupees. So the interest is applied per day only. Second and most important point is on reducing balance is very important. Reducing balance क्या होता है कि आपने पैसा निकाला, एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, करेक्ट. बट जैसे आप रीपे करेंगे वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो जाएगा. जैसे आपने रीपे किया तो उस पर इंटरेस्ट भी कम होता है, राइट. दैट इज व्हाट वोल्ट फॉलोज. अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट यू सी टेलिंग यू 10% फ्लैट रेट इंटरेस्ट है. फ्लैट रेट इंटरेस्ट इज वेरी बैड फॉर द कस्टमर्स, बिकॉज आपने जब पैसा वापस दे दिया तो आपका इंटरेस्ट इस मैं पैसे आवाज पे रहना चाहिए था, बट इट इज स्टिल गेटिंग ऑन द ओवरऑल अमाउंट ओनली. ठीक है, सॉरी.
So the meaning clearly here is essentially reducing balance is a very important point. 10% flat rate equals to 18% reducing balance interest rate. काफी लोग ये मिस सेलिंग में फंस जाते हैं. But since I am from a lending background, I want to be very clear. You should always ask for reducing interest rate only. And this is 10.49. Reducing balance मतलब आपने 1 लाख रुपए लिया और 4 दिन बाद अगर आपने 20,000 रुपए लौटा दिए तो नेक्स्ट डे से ही आपको 80,000 पे इंटरेस्ट लगेगा. ऑटोमेटिकली वो 20,000 रुपीज पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज द प्रोसेसिंग फी? प्रोसेसिंग फी was 999 per year, but at the moment we are working with a reduced on Asset Plus only. You'll be able to find a reduced processing fee of 499 per year plus GST. This includes all charges, lien marking charges, document charges, GST, lien removal, everything. Right. So there is no hidden, nothing else. We have two lenders, Tata Capital, Bajaj Finance. Tata, we do a 1-year tenure, which is 499 plus GST. Bajaj is a 3-year tenure where we do 1500 per GST, essentially 500 per year in GST. So there are both lenders. As per the best available rate for the customer, we do the process with the lender. Right. पोस्ट जब आप ओपन करते हैं लिमिट तो प्रोसेसिंग फी आपको ये एक बार लगती है. राइट. ठीक है. अब जैसे ही आपने ये ओपन किया, फॉर एग्जांपल आपने 18 जून आज अपना लिमिट ओपन किया और आपने पैसा निकाला. So when you're withdrawing first time ये कट के आएगा पैसा, right? But when you withdraw second, third, fourth, fifth, 10 times also or 100 times, this will not be applied for the next 12 months or tenure, whatever you have selected. So for example, 12 months में आपने 50 बार भी withdraw किया, ये processing fee सिर्फ first time apply होती है, rest 49 times आपके लिए कोई processing fee नहीं लगेगा. You can repay also any time. ठीक है. But once this 12 months over, you need to renew this facility and the renewal charge is same again, 499 plus GST. Very simple. ठीक है. So you can annual maintenance charge और renewal charge एक ही है. There are no double charges. So in a year आपका 499 per year ही लगता है and when you renew it, you will be charged the same amount for a year. So आपका it is please do not sum it up. एक ही amount लगता है जो भी customer का होता है, right? And it is only applied once a year. इसके अलावा there are no hidden charges, anything that is there in the journey. ठीक है. Now, what is the benefits if a customer takes Volt Money's facility instead of redeeming, right? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेनिफिट क्या है कस्टमर के लिए? फर्स्ट इज अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जिस भी फंड में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे लॉक इन है, लाइक देयर इज एन एग्जिट लोड, लॉक इन नहीं तो एग्जिट लोड जैसे ही होता है ना उस टाइम में अगर आप निकालते हैं तो देयर इज अ एग्जिट लोड चार्ज टू द कस्टमर एंड कस्टमर को लॉस देना पड़ता है. बट इफ यू प्लेज दोस फंड्स एंड टेक ए लिक्विडिटी अगेंस्ट इट, आपका एग्जिट लोड बच जाएगा, व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल टू द कस्टमर, right? So all schemes where there is an exit load, it is useful for you to do that. Second thing is whenever customer sells mutual funds, right? उसका जैसे ही आप सेल करते हो डिपेंडिंग आपका कितना टेन्योर है उस यूनिट का, आपका LTCG या XTCG लग जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने 10 लाख रुपए बेचे एंड आपका 5 लाख का प्रॉफिट था, राइट? आपको 50,000 का टैक्स तो अपफ्रंट ही लग गया. इंस्टेड अगर आप प्लेज करेंगे तो यू विल बी एबल टू सेव दैट टैक्स बिकॉज आपने उसको सेल नहीं किया है एंड यू विल बी एबल टू कीप गेनिंग कंपाउंडिंग ऑन दैट 50,000 रुपीज ऑफ टैक्स आल्सो. So customer can be saved from LTCG, STCG tax due to redemption. Third and most important point which I feel is timely goal achievement. हर कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अपना गोल रीच कर रहा है, whether it's wealth creation, child's education, whatever it is. If you do not redeem for that customer and help it, he will be able to achieve timely goal achieve वो कर पाएगा इसके लिए. फिफ्थ एक फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी को कस्टमर को लोन सर्टिफिकेट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वी प्रोवाइड दैट. तो बिजनेस कस्टमर्स अगर वैसे यूज ले रहे हैं तो दे कैन क्लेम एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट, बट फॉर दिस आप अपने अकाउंट्स टीम से प्लीज कंसल्ट कर दीजिए कि वो कैसे यूज ले सकते हैं, बिकॉज हर टीम का अकाउंटिंग डिफरेंट होता है. बट वी प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड लोन सर्टिफिकेट ऑन रिक्वेस्ट अगर किसी को भी चाहिए तो. ठीक है. What type of users you will see? It's very simple. अगर आप देखेंगे small business owner, salary, professional, doctor, every type of users you will find somewhere requires lean money. Small businesses 100% चाहिए होता है, loan credit users को बहुत मुश्किल से मिलता है, salaried, medical emergency, wedding, all those things के लिए. We've been covered. The customer feedback is great. You can try out the process. Same day में money आ जाएगा, and even before that in most of the cases. We've been covered in main news magazines that are there, Mint and everywhere.
आर इन्वेस्टर्स इंक्लूड डीएसपी कैपिटल, फैमिली ऑफिस जो आदित्य कोठारी जी हैं, people from RBI who are also our investors with us, and so on, right? Now, I'll very quickly take you an example how the credit facility works before we go on to the journey. ठीक है, अब मेन चीज क्या है कि अगर आपका 5 लाख का क्रेडिट फैसिलिटी है और आपने 1 लाख रुपए निकाला, तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए पे लगेगा एट 10.49% पर एनम, विच इज 0.029% पर डे। तो 1 लाख रुपए पे आपका 0.209% पर डे, मतलब मोटा मोटा आप मान लीजिए आपका 29 रुपए, 30 रुपए आपका पर डे लगेगा इंटरेस्ट। अगर आप 3 दिन रखोगे तो 90 रुपए, एक दिन रखोगे तो 30 रुपए अप्रॉक्स मान लेते हैं। जितना टाइम रखोगे, आप महीना भर रखते हो तो 900, 862 जो अप्रॉक्स मैंने बताया वैसे। अब if someone takes out money, processing fee 499 plus 18% GST लगा, one time only will be deducted from first withdrawal। अगर आपने अभी तक डिडक्ट नहीं किया है, अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट में लग जाता है। ठीक है, अगर आपने 6 महीने के लिए पैसे निकाले, 180 डेज, टोटल इंटरेस्ट जो लगता है विच इज 1 लाख इंटू 10.49% इंटू 180 डेज के लिए आपने पैसा रखा, डिवाइड बाई 365 इक्वल्स टू 5173। तो आपको 5,170 रुपए में 1 लाख की लिक्विडिटी मिल रही है 6 महीनों के लिए। पर मंथ हम निकालेंगे तो जस्ट 862 रुपीज है, दैट इज इट। सो यू गेट लिक्विडिटी ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर 862 रुपीज ओनली। यू हैव टू टोटल रीपे अराउंड 1.05 लाख ओनली, दैट्स इट। वेरी क्लियरली, जीरो प्रोसेसिंग फी फ्रॉम सेकंड डिसबर्समेंट। आप जब सेकंड टाइम पैसा निकालेंगे, भले 10,000 निकालें, 5,000 निकालें, 1 लाख निकालें, ये प्रोसेसिंग फी वापस नहीं लगता है। दिस इज ओनली वन टाइम। आप प्रिंसिपल जो 1 लाख है, आप पार्ट प्रीपे भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली बेसिस द अमाउंट रिपेड। इफ यू रीपे 10,000 रुपीज, अगले दिन उस 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ 90,000 पे लगेगा, राइट। अगर आपको 12 मंथ्स यूज ले लिया है, आपके पास 1 लाख रुपए, एंड यू डू नॉट वांट टू रीपे इट, यू वांट टू कीप इट बिफोर द फैसिलिटी टेन्योर गेट्स मैच्योर्ड, आप अपना टेन्योर रिन्यू कर दीजिए वो 499 देके, जो ऐसा मैंने दिखाया, एंड यू कैन कीप कंटिन्यूइंग द 1 लाख रुपीज ओवर टाइम। मोस्ट ऑफ आर, इट्स वेरी क्लियरली अराउंड 80% ऑफ द लाइन्स गेट रिन्यूड ईच ईयर, राइट। हमें 1 साल से ऊपर हो चुका है, 80% ऑफ द लाइन्स गेट रिन्यूड ईच ईयर। सर देयर आर सम क्वेश्चन, प्लीज आप चैट में पोस्ट कर दीजिए। इसके बाद आई जस्ट क्विकली गो टू एफएक्यूज एंड टेक द क्वेश्चंस आफ्टर द जर्नी। ठीक है, या सो मूविंग अहेड। तो अगर आपके 12 महीने हो गए हैं, कस्टमर के पास पैसे नहीं है, ही कैन जस्ट रिन्यू इट 500 रुपए देके एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट, दैट इज इट। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपने 1 लाख रुपए लिए 12 महीने एंड पे करना ही करना है। यू कैन जस्ट रिन्यू इट एंड कीप कंटिन्यूइंग इट फॉर एवर ऑल्सो। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो काफी काम के हैं, विच एवरीवन शुड बी अवेयर, इज प्लेजिंग एंड लियन मार्किंग। प्लेजिंग क्या होता है? इट्स बेसिकली गिविंग योर एमएफ यूनिट्स एज कोलैटरल टू सेट अप क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, तो आप जैसे गिरवी रखते हैं म्यूचुअल फंड्स को, वैसे गोल्ड को गिरवी रखते हैं, वैसे हम म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रख रहे हैं। बेसिकली सेइंग इफ आई डू नॉट पे इट बैक, वी हैव द राइट टू सेल, lender has the right to sell the mutual funds to recover the money. But if you, the customer, do not pay it back. So pledging and lien marking means giving mutual fund units as collateral. What is the impact on dividend and capital gains? ये I don't know, ये myth है, but when you pledge a mutual fund units, उसका returns, उसका dividend कस्टमर को ही आता है। ओनरशिप इज स्टिल राइज विद द कस्टमर। वी ओनली हैव द राइट टू सेल इट इफ कस्टमर इज नॉट पे। सो कस्टमर रिटेन्स द राइट टू रिसीव डिविडेंड्स, कैपिटल गेन्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप प्लेज करते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट मैं पैसा दे रहा हूं, तो मैं आपका उसको आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आईडीसीडब्ल्यू या एसडब्ल्यूपी किसी स्कीम पे लगाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी लिक्विड फंड पे एसडब्ल्यूपी लगाई हुई है या एसटीपी लगाया हुआ है, वेन यू आर बाइंग लेट्स से इक्विटी फंड, ठीक है, तो वो जो एसटीपी ऑन द प्लेज यूनिट है वो रुक जाता है, बिकॉज आपने जो प्लेज किया है उसको आप रिडीम नहीं कर सकते, बिकॉज आपको उसके अगेंस्ट कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। सो प्लेज यूनिट कैन नॉट बी रिडीम्ड विदाउट रिमूविंग द प्लेज। प्लीज बी केयरफुल, स्पेशली while doing एसडब्ल्यूपी, एसटीपी, आईडीसीडब्ल्यू यूनिट्स और देयर। फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज, मेरे एसआईपी यूनिट्स ऑटोमेटिकली प्लेज हो जाएंगे? दैट इज नॉट द केस। कस्टमर का एसआईपी एज इट इज चलता रहेगा, वी हैव नो रिलेशन टू एसआईपी। न्यू यूनिट्स बॉट आर नॉट ऑटोमेटिकली प्लेज, वो खुद से प्लेज नहीं होते, कस्टमर कंसेंट रिक्वायर्ड है प्लेजिंग के लिए, विच इज डन बाय ओटीपी। कैन आई प्लेज लॉग्ड यूनिट्स? ईएलएसएस सबसे कॉमन क्वेश्चन है। नो, यू कैन नॉट प्लेज लॉग्ड यूनिट्स बिकॉज दैट कैन नॉट बी सोल्ड। तो आपके जो ईएलएसएस के ग्रेटर देन 3 इयर्स के यूनिट्स हैं वो प्लेज हो सकते हैं, लेस देन 3 यूनिट्स कैन नॉट बी प्लेज। ठीक है, greater than 3 year ELSS units can be pledged, less than 3 years cannot be pledged. Retirement schemes currently are not approved, right?
अगर आपको किसी भी, विल शो यू द डेमो, बट किसी भी चीज में आप अटके हैं तो आप प्लीज एसेट प्लस आरएम को रीच आउट करें. दे हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अ प्रायोरिटी लाइन. जो भी इशू होगा विल बी देयर टू हेल्प यू. अब वेयर डू यू फाइंड दिस ऑप्शन ऑन एसेट प्लस? सबसे मेन क्वेश्चन है. अगर आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यू विल सी होम, क्लाइंट्स, प्रोडक्ट, स्टैट्स, रिसोर्सेज एवरीवेयर. इन द प्रोडक्ट सेक्शन इफ यू क्लिक, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, एनपीएस, लोन्स, बॉन्ड्स मिलता है. इफ यू क्लिक ऑन द लोन्स सेक्शन, एज यूर सेइंग, प्रोडक्ट्स में, लोन्स में आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ऑप्शन मिल जाएगा, राइट, वेयर यू कैन सी बेसिक डिटेल्स, एवरीथिंग एल्स. यू कैन क्लिक स्टार्ट लोन एंड प्रोसीड. एज एन यू स्टार्ट, आप अपना क्लाइंट सिलेक्ट करें, कंटिन्यू करें. यू कैन प्रोसेस द फॉर द क्लाइंट हियर इटसेल्फ, और यू कैन नोटिफाई द क्लाइंट आल्सो. ठीक है. एक बेसिक स्टेप्स दिए हुए हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा. इज चेक क्रेडिट लिमिट, कैसे प्लेज करते हो, कंप्लीट केवाईसी, एंड पैसा कैसे निकाल सकते हैं. I'll quickly jump and do a demo journey that we have specially set it up for. Let me, आई बिलीव मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा. सो आप जब कस्टमर प्रोसीड करेंगे, आफ्टर एंटरिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन, व्हेन यू गो हियर, कस्टमर के पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है उसके बेसिस पे आपको ये ऑप्शन आएगा. अगर मोबाइल नंबर दूसरा है तो यू कैन गो हियर एंड एडिट इट आल्सो. जो भी डालना है आप डाल सकते हो. ठीक है. आपका ईमेल आईडी अगर डिफरेंट है तो आप कर सकते हैं, बट वंस यू डू दिस यू कैन सिंपली सिलेक्ट द आरटीए. ऑटोमेटिकली एक एक करके फेच होता है. तो लेट्स से मैं केफिंट सिलेक्ट कर रहा हूँ. KFintech sends me an OTP. This is how the process is to the customer. If the customer enters the OTP, ऑटोमेटिकली वो पीछे से सारे म्यूचुअल फंड्स पुल करेगा. हेयर कट जो मैंने बताया 50%, 20% या जो भी एलटीवी वो लगाएगा, और आपको इंस्टेंटली लिमिट दे देगा. तो मेरे म्यूचुअल फंड्स है 13.20 लाख, 24 लाख के. मेरी लिमिट है 5.95 लाख की, राइट. एंड आप देखेंगे मुझे हर स्कीम आ रही है उसके अगेंस्ट मेरी लिमिट आ रही है बाय ईच. 6.87 लाख के अगेंस्ट मुझे 3.09 लाख की स्कीम मिली है, राइट. नाउ आई कैन गेट मोर पोर्टफोलियो, आई कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप. सो इफ आई क्लिक गेट मोर पोर्टफोलियो, मुझे सेम, मैंने KFintech किया तो कैम्स फेच बोलेगा, बट लेट मी जस्ट कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप. इट विल शो मी कि आपने कैम्स नहीं फेच किया है, KFintech ही फेच किया है. लेट मी गो अहेड एंड कंटिन्यू सेलेक्ट. जनरली प्लीज fetch all funds of the portfolio so that lien removal is free, but every increase or new pledging requires 499 rupees to be pledged. Continue कैसे, जो भी फाइनल लिमिट है वो दिखाई, राइट. इफ यू क्लिक कंटिन्यू, अब इट इज 100% फ्लेक्सिबल टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू प्लेज. ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी टू प्लेज एवरीथिंग. हम लोग सजेस्ट करते हैं बिकॉज आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट विल ओनली बी चार्ज ऑन अमाउंट विड्रॉन. बट आप इस मोमेंट पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे 1,56,000 चाहिए, 2,21,000 चाहिए, पूरा चाहिए. यू कैन क्लिक हियर, डिसाइड इफ आई वांट टू जस्ट प्लेज 3 लाख रुपीज. आपने कंफर्म किया, ऑटोमेटिकली इट विल टेक द मिनिमम रिक्वायर्ड. ठीक है. इट विल जस्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द मिनिमम म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिक्वायर्ड टू प्लेज. और अगर आपको ये भी नहीं करना है, इफ यू वांट टू लिटरली सेलेक्ट विच स्कीम, लेट्स से कोई लिक्विड फंड है, आपको नहीं सिलेक्ट करना है, यू कैन क्लिक एडिट सिलेक्शन. यू कैन सी ऑल स्कीम्स दैट आर देयर अगेंस्ट ईच. इफ यू वांट टू रिमूव अ स्कीम, आप टिक हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली लाइन मॉडिफाई हो जाएगी बेसिस द सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स. और अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, यू कैन लिटरली से कि मुझे इस स्कीम का सिर्फ 10,000 ही प्लेज करना है, तो इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट द यूनिट्स ऑल्सो, राइट. सो इट इज एज सिंपल एज दैट. 100% फ्लेक्सिबल. आपको जो सिलेक्ट करना है, जैसे मैं अगर इस केस में ये 2 स्कीम्स हटा देता हूँ और इसका 9,900 करता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ. इट विल कंफर्म, शो मी द न्यू लिमिट. इट विल शो ऑटोमेटिकली द लेंडर ऑल चार्जेस दैट आर शोन 99949 जो भी है. इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कब डिडक्ट होता है? सो इंटरेस्ट is mandatory to be pay every month. So hassle free auto payment on 3rd of every month. So Tata is 3rd of every month, Bajaj is 7th. वो आपको यहाँ दिख जाएगा. इंटरेस्ट स्टेटमेंट जैसा भी आपने जितना यूज लिया है, फर्स्ट ऑफ द मंथ को आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका इतना इंटरेस्ट ड्यू है. रीपेमेंट एज आई सेड इज फ्लेक्सी, कभी भी रीपे कर सकते हो. तो विड्रॉ मनी एनी टाइम, रीपे एनी टाइम, राइट. 12 मंथ टर्म है, जैसे मैंने कहा टाटा में, तो आपको दिख रहा है रिन्यूअल कैन बी डन इजीली विदाउट रीपेइंग प्रिंसिपल एट 12 मंथ्स एंड. ठीक है. एंड फोरक्लोजर एज आई सेड इज फ्री. The registration state, please keep it at Delhi only, because that is the minimum registration fee for this loan. You can select other states also, but it will just be more expensive. तो जो भी आपका है, आपने डिटेल्स देके सिलेक्ट किया, प्लीज गो थ्रू द डिटेल्स. RBI requires everyone to show key fact statement which is there. बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें जो कस्टमर को देखनी है वो देख ले. It is the same what I am telling you, but still once you've selected, it will now select कि अच्छा आपने इतना अमाउंट कर लिया है. Let us go ahead and do the next steps that is there.
ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इट विल गो एंड डू द स्टेप्स। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं आपको एक बार जर्नी स्क्रीन में ले जाता हूँ, बिकॉज आई फील दैट वुड बी जस्ट फास्टर, बट आपको ये सब चीजें एक मिनट। सो जो भी मैंने स्टेप दिखाया है उसी के स्क्रीन से, ठीक है। जब आपने KFS देख लिया, जो हमने बोला था, प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट रेट, विड्रॉल, रीपेमेंट, सब कुछ, व्हेन यू कंटिन्यू इट टेल्स यू नाउ आपने सेलेक्ट कर लिया है बट अभी प्लेज नहीं किया है, तो वो पहले पूछता है कि आप KYC कर लीजिए। सो डिजी लॉकर बेस्ड KYC विच इज वाइडली यूज, सेम जो आपका हर जगह होता है, डिजी लॉकर गवर्नमेंट का है, दैट इज यूज्ड। यू डू योर डिजी लॉकर KYC, सेम रिडायरेक्ट होगा, आधार नंबर, पैन नंबर, ऑटोमेटिकली बेसिस आधार नंबर, पिन नंबर से, OTP से फैच हो जाएगा, कस्टमर को डिटेल्स दिख जाएगी, सो देयर इज नो इशू। You can simply select it and confirm and proceed. It will be required to take a selfie. So if you're with the customer, अगर आप Asset Plus के ऐप हैं तो वहीं पे आप सेल्फी ले लीजिए डायरेक्टली, एंड कस्टमर सेल्फी इट इज एज पर RBI गाइडलाइन, तो सेल्फी इज मैंडेटरी। अगर आप खुद कस्टमर के साथ कर रहे हैं और प्रोसेस, अगर आप कस्टमर के पास नहीं है ये, देन वी सजेस्ट कि आप एक app.voltmoney. एक लिंक है, वहां आप वो लिंक कस्टमर को भेज दीजिएगा, बट मेक श्योर आप इस स्टेप पे हो। कस्टमर जब वो लिंक खोलेगा, मोबाइल नंबर कस्टमर अपना डालते, उससे सिर्फ सेल्फी पूछेगा, उसको आप बोलेगा सेल्फी करके ही कैन क्लोज द लोन एंड गो अहेड, एज सिंपल एज दैट। बट बेटर अगर आप एसेट प्लस के थ्रू सब कुछ सेम जर्नी प्रोसेस हो जाएगा। कस्टमर ने सेल्फी लिया, सो दैट इट श्योर दैट ही हैज टेकन इट। वो सेल्फी इट विल आस्क यू टू लिंक बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। जिस अकाउंट में आपको बार बार पैसा चाहिए, इट विल आस्क यू टू लिंक, तो आप जो भी अकाउंट नंबर HDFC का, जैसे आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो HDFC का सिलेक्ट करके अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल दीजिए। इट विल डू अ पेनी ड्रॉप, 1 रुपया डाल के वो वेरीफाई करेगा अकाउंट एक्टिव है नहीं, मैच करेगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सी दिस अकाउंट इज लिंक्ड, आपको ऑटो डेबिट डेट आ जाएगा, एंड देन इट विल आस्क यू टू सेट अप अ मैंडेट। मैंडेट किस लिए है कि आपने जो भी यूज लिया, लेट्स आप 1 लाख रुपए यूज लिए 1 महीने के लिए, तो जो 862 रुपीज इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाता है 3rd ऑफ मंथ या 7th ऑफ मंथ। तो आपको कस्टमर को एक मैसेज आ जाएगा 1st ऑफ द मंथ को कि भाई आपका इतना ड्यू है 860 रुपीज, प्लीज मेंटेन बैलेंस इन द गिवन अकाउंट, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो भी डिजिटल मैंडेट हुआ है उससे विड्रॉ करके ये प्रोसेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कस्टमर को देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ही जस्ट नीड टू मेंटेन बैलेंस इन द अकाउंट। सो जो भी अकाउंट में वो बैलेंस मेंटेन करते हैं वो रखने की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली इंटरेस्ट इज मैंडेटरी, प्रिंसिपल इज नॉट मैंडेटरी। आपने 1 लाख रुपए लिए, 862 रुपीज दिए, जब आपके पास इंटरेस्ट आप तब दे सकते हैं, विच आई शो टू यू इसके बाद, ठीक है। अब आपने बैंक डिटेल्स डाल दी, नाउ इट विल आस्क यू टू प्लेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज प्लेजिंग पे अगर आपने प्लेज कर दिया तो कस्टमर कैन नॉट गो बैक, बिकॉज आई प्लेज्ड विद द RTA एंड देयर इज अ प्लेजिंग चार्ज ऑफ 400 रुपीज, अगर इस स्टेप के बाद कोई कैंसिल करना चाहता है तो, एंड इट टेक्स 3 to 4 days फॉर द लेंडर टू कैंसिल ऑल्सो, ठीक है। तो इट इज अ वेरी क्लियर स्टेप। प्लेजिंग जब आप कर रहे हैं, सेम OTP आएगा के फिनटेक और कैम से, यू जस्ट एंटर द OTP एंड ऑटोमेटिकली यूनिट्स आर प्लेस्ड, एंड लास्ट आपका जो एग्रीमेंट है जो हमने डिस्कस किया, आप एग्रीमेंट साइन कर दीजिए OTP से, एंड योर प्रोसेस इज डन, योर लिमिट इज देयर, नाउ यू कैन रेडी टू विड्रॉ। आप अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। फर्स्ट डिसबर्सन में थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 2 hours, बिकॉज दे लॉन्च इट, ओपन इट अप, राइट, वो भी कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ मैं, बट गोइंग फॉरवर्ड आप सिंपली विड्रॉ और रीपे कर सकते हैं। हाउ डू यू विड्रॉ एंड रीपे, लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू, ताकि आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाए कैसे। सो ये एक प्रोडक्शन में मेरे कलीग की लाइन है, सेम आपको चीजें पूरी एसेट प्लस में दिखेगी, सो यू शुड डू इट बाय एसेट प्लस। अगर आप देखेंगे तो आपको कस्टमर दिखेगा, अवेलेबल कैश जितना भी है, इन दिस केस 23,000 है, सो अवेलेबल कैश आपको दिख जाएगा, आउटस्टैंडिंग दिख जाएगा। इफ यू वांट टू विड्रॉ, क्लिक हियर, यू कैन एंटर अमाउंट 10,000 रुपए लेट्स से, ठीक है। इट विल टेक ऑल कैलकुलेशन एंड शो यू द फाइनल अमाउंट। जैसे अगर आपका प्रोसेसिंग भी डिडक्ट होना है तो ये बता देगा कि 1000 प्लस GST है तो 1180 है। नेट डिसबर्सल कितना पहुंचा है, सिंस 10,000 किया था तो ये माइनस हो गए, किस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नया प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, अप्रोक्स एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ड्यू क्या होगा, रीजन और लॉजिक भी है, इंटरेस्ट ड्यू डेट क्या होगी, फर्स्ट को हो जाता है, मंथली इंटरेस्ट आपका कैसे कैलकुलेट हुआ है वो भी कैलकुलेट करके दे देता है। प्रिंसिपल पेमेंट एज आई सेड इज फ्लेक्सिबल, सो यू कैन क्लिक एंड चेक कि कभी भी आप वापस पे कर सकते हो इसमें। यू क्लिक विड्रॉ नाउ हियर एंड ऑटोमेटिकली इट विल ट्रिगर एन OTP टू द कस्टमर एंड कस्टमर क्लोजेस एंड आपका विड्रॉ रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो विड्रॉल इज वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सिंपल अमाउंट डालें, OTP डालें, एंड यू कैन प्रोसीड। अगर आपको रीपे करना है
सिंपली क्लिक रीपे। अगर एनईएफटी आरटीजीएस करना है तो ये डिटेल से आप डायरेक्ट एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। 99% कस्टमर से सिंपली मेक ऑनलाइन। यू कैन सेलेक्ट फुल 709 रीपे करना है, या अगर आपको पार्शियल करना है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो 300 रुपीज, जो भी अब आपको अमाउंट डालना है, ठीक है। आप सेलेक्ट पेमेंट मेथड कीजिए। इट विल ऑटोमेटिकली टेक यू टू द बैंकिंग पेमेंट, जो भी पेमेंट गेटवे है। डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड डाल दीजिए, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग, यूपीआई है तो आप यूपीआई भी कर सकते हैं, स्कैन करना है, कोड है। मोस्ट कॉमन पेमेंट मेथड, ऑल सपोर्टेड, इज 100% डिजिटल। ऑटोमेटिकली आप पे करेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी अकाउंटेड फॉर, राइट। सो कस्टमर कैन रीपे एनी टाइम। जो मैंने कहा पार्शियल रीपेमेंट अलाउड है, वो 709 रुपए है तो वो 300 भी पे कर सकता है, 200 भी पे कर सकता है, पूरे जितने वो पे करेगा उस पे कम इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। देयर इज एन इंटरेस्ट कैलकुलेटर ऑल्सो विच यू कैन सी। सेम थिंग, अगर कस्टमर को चेक करना है तो वो अमाउंट डाल के, अगर 1 लाख रुपए है, इतना इंटरेस्ट है तो कितना उसका ईएमआई होगा, एवरीथिंग स्केड्यूल वो देख सकता है, ठीक है। एज एज आई सेड, वो सब चीजें अवेलेबल है आपके पास। इफ यू गो टू द ट्रांजैक्शंस टैब, एग्जैक्टली आपको एसेट प्लस के ट्रांजैक्शन टैब में जब आप जाएंगे, यहाँ पे जो मैंने बताया, यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, एवरीथिंग। विड्रॉ जब भी किया ना, ईच ट्रांजैक्शन इज मार्क्ड कि इंटरेस्ट 6 रुपए था, वापस आप कस्टमर ने पे कर दिया, प्रिंसिपल 1 रुपए पे किया। ये हम ट्राई, मतलब इट्स अ डेमो लाइन, तो हम लोग करते रहते हैं। सो विल बी फाइल, इवन आप 7 रुपए 1 रुपए भी पे कर सकते हो, वेरी सिंपल। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू आई इंक्रीज माई लिमिट, ठीक है। तो जैसे भी आप लिमिट इंक्रीज करते हो, सेम जर्नी से इंक्रीज लिमिट क्लिक करेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड फेच होंगे और आपकी लिमिट इंक्रीज होगी। प्लस प्लीज बी अवेयर, व्हेनेवर यू डू, ये सेम 499 पर ईयर के चार्जेस वापस लग जाते हैं, क्योंकि आपका एग्रीमेंट रिन्यू होता है। सो व्हाट वी सजेस्ट इज डू मैक्सिमम। इफ यू वांट टू सी व्हाट इज प्लेज्ड एनी टाइम, जस्ट क्लिक व्यू डिटेल्स। इट विल ओपन हेयर एंड शो यू जो भी आपके स्कीम्स प्लेज्ड हैं। 31,000 है, इतनी लिमिट है उसके अगेंस्ट। अगर आपने प्लेज प्लेज और करना है तो आप यहाँ क्लिक करके प्लेज कर सकते हैं। अगर आपको प्लेज हटाना है, क्लिक हेयर, इट विल शो ऑल स्टेप्स जैसे जैसे हो रहा है। कंटिन्यू कीजिए। जो भी स्कीम्स, जैसे 2 स्कीम्स तो इजी, पर आप सर्च कर सकते हैं स्कीम लाइक HDFC, सिर्फ वो दिखा देगा। यू कैन सेलेक्ट कि मुझे इसी स्कीम को अनप्लेज करना है और इसका भी लेट्स से 5,000 ही करना है। गिवन देयर शुड बी नो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगेंस्ट इट। आपने पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया, लिमिट की, उसने बताया देखो आपने इतना अनप्लेज किया है, इतनी लिमिट है, नई लिमिट आपकी 21,000 हो जाएगी क्योंकि आपने ये अनप्लेज कर दोगे। एंड एक बार रिक्वेस्ट दे देंगे तो इट कैन नॉट बी वेंटेड, आप कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी आएगा कंफर्मेशन के लिए एंड योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड। सो अनप्लेजिंग इज 100% डिजिटल, इंस्टेंट, आप कस्टमर के लिए कर सकते हैं। प्लेज मोर भी आप यहाँ से क्लिक करके सेम जर्नी जो मैंने दिखाई आप कर सकते हैं एनी टाइम, राइट। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो आपको दिख रहा होगा इज दैट वी गिव लिमिट अप टू 45% अपफ्रंट। सो एक लास्ट पॉइंट बिफोर यू जंप आउट टू द क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप देखेंगे, वी डू नॉट गिव अप टू 50% जनरली, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन कॉल इन लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। व्हाट इज मार्जिन कॉल? दैट, I'll just jump it, that RBI says कि whatever is the loan amount, whatever is the pledged portfolio, at any moment, आप कभी भी 50,000 से ऊपर, 50% से ऊपर लोन अमाउंट नहीं रख सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपका 1 लाख का प्लेज किया तो 50,000 मैक्स लोन अमाउंट होना चाहिए कभी भी। अगर वो 1 लाख 1,10,000 बन गया तो 55,000 तक जा सकता है मैक्सिमम। हालांकि सैंक्शन लिमिट से वो 50 पे रुक जाता है, ठीक है। अगर वो 1 लाख से 95,000 गया, लेट्स से मार्केट गिरा, तो आप 95,000 का मिनिमम 50% ही रख सकते हो मैक्सिमम, तो वो 47,500 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने 1 लाख रुपए प्लेज किया, 50,000 रुपए का आपका लिमिट आ गया, ठीक है। एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट RBI 50,000 का लिमिट आ गया, कस्टमर ने 50,000 पूरा निकाल दिया। अभी 1,000 से लेट्स से 99,000 हुआ। As per the rule, 50% of this 1 lakh rupees is the max limit, which is 49,500, but total amount is 50,000. तो ये 500 रुपए का शॉर्टफॉल आएगा, ठीक है। आप ये 500 रुपए के शॉर्टफॉल को कस्टमर को 7 दिन मिलते हैं। 7 days the customer gets to pay it back. He can pay that 500 rupees. He can pledge worth 1,000 more so that वो 50% रेशियो रिटेन हो जाए, और ऑटोमेटिकली उस दौरान मार्केट उठ गया तो वो ऑटोमेटिकली प्लेज हट जाएगा। इफ ही डजंट डू दैट, then as per rule, after 7 days, 7 days customer को notification, everything will go. After 7 days, we sell the mutual fund units twice that amount and adjust it against the principal. तो अगर 500 है, मैं 1,000 रुपए प्लस जो भी ऑपरेशनल चार्जेस होते हैं
वो लगा के उतना सेल करूंगा, और जो भी अमाउंट सेल हुआ है वो मैं आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट सेट ऑफसेट कर दूंगा। तो मैंने अगर 500 के 1000 बेचा, आपका 50,000 था, तो आपका 1000 रुपये यहाँ पे प्रिंसिपल कम हो जाएगा, 49,000 हो जाएगा, और म्यूचुअल फंड आपके पास अराउंड 99,000 के बच जाएंगे। तो आपका रेशियो भी मेंटेन हो गया और आपका प्रिंसिपल भी कम हो गया। हाउएवर म्यूचुअल फंड यूनिट सोल हो जाएंगे। टू सेफगार्ड द कस्टमर जनरली व्हाट वी डू इज वी प्रोवाइड 45% लिमिट ओनली। सो छोटा मोटा फ्लक्चुएशंस हो, यू कैन ऑटोमेटिकली, बेसिकली कस्टमर को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट 10% गिरेगा आपका पोर्टफोलियो, तब उसको पहला मार्जिन कॉल आएगा। बट इट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू नो, अंडरस्टैंड एंड इन्फॉर्म द कस्टमर, राइट? Happy to share a slide also if people want. I'll coordinate with the Asset Plus team and share it with you. Okay. Now, jumping on to the questions before I'll open it, this thing. Interest rate, Rajendra ji का question है. It is 10.49. If principal amount is 3 lakh rupees and profit is 2 lakh, how much I get fund? सर, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता होता प्रॉफिट क्या है, मुझे ये पता होता है आज आपके म्यूचुअल फंड कितने हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आज म्यूचुअल फंड अगर आपके पास 3 लाख, आज 6 लाख का है तो 3 लाख मिल जाएगा। 3 लाख पे आपका मंथली इंटरेस्ट लगेगा 862 इंटू 3 अप्रोक्सीमेटली 2,500 के आसपास। ठीक है, सो वैसा। संजीव लालवानी जी क्वेश्चन, इट वर्क्स लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। परफेक्ट सर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वन कैन विड्रॉ डिपॉजिट बैक इनटू द लोन अकाउंट एनी टाइम, 100%। कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, कभी भी रीपे कर सकते हो, वापस निकाल सकते हो। What is the incentive for Asset Plus channel partner for this product? This will be taken by Asset Plus team. You can reach out to your respective RMs and they will inform you about this. ठीक है। Can we pledge stocks? At the moment नहीं sir, stocks pledge नहीं कर सकते because we are partnered with RTAs, CAMS and K Fintech, right? तो इसलिए वो ही हो सकते हैं। स्टॉक्स जो होते हैं वो डीमैट में लाया करते हैं, डीमैट कस्टोडियन ब्रोकर होता है। तो दैट इज समथिंग एट द मोमेंट नॉट लाइव एंड वी आर वर्किंग ऑन टू गेट इट वेरी सून। आपको वो स्टॉक्स भी आ जाएगा, डीमैट भी, म्यूचुअल फंड भी आ जाएंगे। Account opening fees just for example and not applicable in every case. Just to reiterate, interest is not charged on available cash but on amount withdrawn. Sir, interest is not charged on available cash but on amount withdrawn. This is 100% correct. Account opening fees तो एप्लीकेबल है सर, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझा। एक बार लास्ट क्वेश्चन हुआ था, अनम्यूट करके एक बार पूछ सकते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू अनप्लेज एमएफ आफ्टर कंप्लीट रीपेमेंट? इट इज ऑटोमेटिक। सर, ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने रीपे करते तो वो वापस भी निकाल सकता है। तो अपन ऑटोमेटिकली अनप्लेज कर देंगे तो वापस उसको चार्ज लगेगा लाइन ओपनिंग का, इसलिए नहीं करते। वो कभी भी निकाल रीपे कर सकता है। आप सोचो, कस्टमर हैज द एबिलिटी टू गेट लिक्विडिटी एनी टाइम। उसके पास है कि भाई मेरे पास 10 लाख की लाइन है, मैं कभी भी पैसा निकाल सकता हूँ, 10 लाख कभी भी रीपे कर सकता हूँ। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, नहीं यूज लूंगा तो कुछ पैसा नहीं लगेगा सिवाय वो 500 रुपए के। ईयर का 500 रुपए के अगेंस्ट मुझे मेरी 10 लाख की लिक्विडिटी मिल गई है या 5 लाख की लिक्विडिटी मिल गई है, जो भी है, विच इज वेरी बिग स्टेप। बट अगर किसी को है कि मुझे अनप्लेज करना है, लेट्स से पोर्टफोलियो रीबैलेंस, यू सिंपली गो, जो मैंने ऐप में दिखाया, अनप्लेज पे मैनेज लिमिट, सेलेक्ट पोर्टफोलियो, अनप्लेज, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम अनप्लेज करना है आप कर दो, सबमिट कर दो ओटीपी साथ, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट चला जाएगा। 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर आपका लियन हट जाएगा, गिवन आउटस्टैंडिंग नाउ। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? हेलो, हाँ सर, शशांक यार, ये कितने साल के लिए ओडी मिलेगा सर हमको? जब तक प्लेज है तब तक क्या? नहीं सर, ये 1 ईयर का एग्रीमेंट होता है, फिर 1 ईयर बाद आप रिन्यू कर सकते हो हर साल। तो क्योंकि रिन्यूअल एग्रीमेंट में एक डेट आना जरूरी है सर। तो हम लोग वर्क कर रहे हैं कि आपका सारा एग्रीमेंट 3 साल के लिए कर दें। वी आर ऑल्सो वर्किंग विद लीगल की 5 साल का एग्रीमेंट होता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो अभी के लिए 1 ईयर है क्या? अभी के लिए सर 2 हैं, 1 ईयर विद टाटा एंड 3 ईयर विद बजाज। ओके ओके, 1 ईयर विद टाटा, 3 ईयर। और जब वो रिन्यू करेंगे हम लोग तो प्रोसेसिंग फी अगेन लगेगा ना उस टाइम, जो भी है 499 या हाँ, ये जो भी 999? 500 रुपए है ना सर, वो आपका साल में आप मान लो एक बार लगेगा बस। रिन्यूअल पे एक बार लग गया, फिर वापस साल पर नहीं लगेगा। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, संजीव जी कांटेक्ट नंबर आप अपने एसेट प्लस आरएम को कांटेक्ट कर दीजिए, ही विल हेल्प यू आउट। आई थिंक यू भी अपने हेलो, इंटरेस्ट रेट इनको टाटा एंड बजाज, करेक्ट सर, इंटरेस्ट रेट सेम इनको कविता माहेश्वरी जी क्वेश्चन है, इफ यू आर गिविंग 50% एंड आई वांट ओनली 30% टू अवॉइड मार्केट रिस्क, इज इट पॉसिबल? 100% मैम।
जो भी आपको 50% मिला है, आप उसमें से 80% ही निकालो, 90% ही निकालो, वेरी डिफरेंटली। ठीक है, तो आपका हमेशा रिस्क है। वी जेन्युइनली ऑल आवर पार्टनर्स ऑल्सो हैव सेड इट एंड वी ऑल्सो से पूरा यूटिलाइज मत करो, 90% 80% ही करो, ताकि कोई शॉर्टफॉल का इशू नहीं आए, एंड वी 100% प्रोपोगेट दैट। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैंक कोड एंड गोल्ड प्रोडक्ट? दो तीन चीजें हैं सर। फर्स्ट, वी डू नॉट क्रॉस सेल एनीथिंग टू द कस्टमर, बैंक विल क्रॉस सेल म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, एक केस था मुंबई में वेयर कस्टमर ने दोनों इस म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज लेना था। बैंक ने बेसिकली, आई कैन टेक द नेम ऑफ द बैंक, बहुत बड़े वो लोग हैं, बट कस्टमर को उसमें बोला कि आप अपना एआरएन शिफ्ट कर दो बैंक के एआरएन में। उस एसओ का टारगेट था, जो भी ऑफिसर था उसका टारगेट था, तो हम आपको लैस दे देंगे। कस्टमर को नहीं पता था ये सब क्या होता है, उसने उसकी बात सुन के, बिकॉज उसको पैसे चाहिए थे, उसने एआरएन ट्रांसफर कर दिया, लैस ले लिया। दिस इज अ वेरी बिग एमएफडी ऑफ मुंबई, माइंड यू। ठीक है, बहुत बड़े एमएफडी हैं। आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज ही डज नॉट वांट टू टेक द नेम, बट कैफे म्यूचुअल एंड एवरीवेयर इट इज कवर्ड वेरी क्लियरली। सो एक तो क्रॉस सेल नहीं करते, वी डू नॉट हैव एनी अदर प्रोडक्ट, वी डू जस्ट लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड। सेकंड, आपको एक अलग अकाउंट नहीं खोलने की जरूरत है, जैसे आपको बैंक में करना पड़ता है, एक अलग ओडी अकाउंट खुलता है। देयर इज नो अकाउंट टू बी रिक्वायर्ड टू बी ओपन हियर, सेम अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। थर्ड, बैंक का प्रोसेस डिजिटल जनरली नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा, प्लस बैंक 20 लाख से ऊपर दे ही नहीं सकता है। तो आरबीआई का रूल है, इक्विटी फंड से 20 लाख से ऊपर बैंक पर पैन दे ही नहीं सकता है। हमारे में कोई लिमिट नहीं है, 25-20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ जो हो सब हो जाएगा आपके लिए। प्लस पूरा डिजिटल है, जो आपको किसी बैंक में अभी तक रेयरली मिलेगा। बट द मेन पॉइंट इज क्रॉस सेल एंड 20 लाख लिमिट। हेलो। इंटरेस्ट रेट लता जी इज 10.49। हाउ मच ब्रोकरेज के लिए श्रीकांत जी प्लीज रीच आउट टू योर एसेट प्लस आरएम। आई बिलीव द टीम विल शेयर द नंबर हियर और सेपरेटली। या मैम, एनी क्वेश्चन? हाँ सर, अगर कस्टमर कोई डिफॉल्ट होता है इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो जो प्लेज्ड यूनिट्स हैं तो वो सारे ही सोल्ड हो जाएंगे टू पे द इंटरेस्ट बाय द प्लेज, और जितना इंटरेस्ट अमाउंट पेंडिंग है उतना सोल्ड होगा। सर, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करता है, लेट्स से 7th ऑफ द मंथ को हुआ, अगर उसने नहीं पे किया तो इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर एक बाउंस चार्ज लगता है। ठीक है, जो भी 500 या 1200 होता है पर लेंडर को बाउंस चार्ज लगता है, और एक पीनल इंटरेस्ट होता है 2 या 3% पर मंथ ईच लेंडर ऑन द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट। 15 तारीख तक वेट होता है कि कस्टमर को ओके। रिमाइंडर प्लीज पे कर दीजिए, प्लीज पे कर दीजिए। अगर वो 15 तक नहीं पे करता है तो उतने अमाउंट का ही म्यूचुअल फंड सेल होता है, पूरा नहीं सेल होता है। We have no right to sell 100% of the mutual fund until unless you ask for। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेल ऑफ हम लोग नहीं कर सकते, जितना ड्यू है सिर्फ उतना ही होगा। अगर वो 10 रुपए का ड्यू है सिर्फ 10 रुपए का सेल ऑफ होगा। ठीक है, ओके, तो बाकी का जो पेंडिंग यूनिट्स है वो अनप्लेस्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं नहीं, आपका लिमिट तो चल ही रहा है ना सर, तो नहीं, अगर इफ आई वांट टू क्लोज द लिमिट, अगर मेरे को वो पूरा इंटरेस्ट पे करना है विद प्लेस्ड म्यूचुअल फंड यूनिट, तो हम्म, बाकी जो अनप्लेस्ड है वो मेरे में अनप्लेस्ड हो जाएगा ना अपने आप, बाकी का पेंडिंग जो बचा हुआ है। हाँ हाँ, आप जब क्लोज करते हैं यस। जैसे मैंने आपको बताया, आप जब क्लोज करते हैं तो आपको ऑप्शन एक ऊपर राइट में फोर क्लोजर का भी ऑप्शन होता है, जिसमें अगर आपका कुछ भी ड्यू नहीं है तो वो पूरा सारा ऑनलाइन के लिए दे देगा। अगर कुछ ड्यू है तो बता देगा, कि जैसे आपके 1200 ड्यू हैं, ये पे कर दीजिए, और जैसे पे करेंगे आपका ऑटोमेटिक ऑनलाइन रिक्वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है सर, मतलब वो पूरा फ्लेक्सिबल है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं। सर, इसमें सिविल में कुछ इम्पैक्ट करता है क्या? सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो भी प्लेयर बोले, सिबिल का इम्पैक्ट क्वांटिफाई करना बहुत टफ होता है। देर इज नो सिंपल वे कि मतलब ऐसा कि ये 2 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 2 पॉइंट इम्पैक्ट होगा। सिबिल जनरली डिपेंड करता है ओवरऑल उसने कितना लोन लिया कस्टमर। अगर कस्टमर ने बहुत कम लोन लिया है तो इससे क्या होगा कि उसका ज्यादा सिबिल इम्पैक्ट नहीं होता है जनरली, राइट, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है, तो दिखाता है कस्टमर के पास कुछ सिक्योरिटी है रखने के लिए। जैसे होम लोन से भी सिबिल बहुत कम इम्पैक्ट होता है, राइट, बट सिबिल में रिपोर्ट जरूर होता है। सो इट इज नॉट क्लियरली कि सिबिल गिरेगा या बढ़ेगा, कुछ केस में बढ़ भी जाता है। ठीक है, बट इम्पैक्ट बहुत मिनिमल होता है कस्टमर के सिबिल में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी आपको बोले कि सिबिल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है या सिबिल में रिपोर्ट नहीं होगा, प्लीज वो लोन मत लेना, बिकॉज आरबीआई का बहुत क्लियर मैंडेट है कि वी नीड एवरीवन इन द कंट्री, पूरे देश में जितने भी लेंडर है सबको अपना लोन सिबिल सारे ब्यूरोज में रिपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, बट कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं होता, जितने भी लोगों ने लिए हैं अराउंड 10-20 बिप्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर। 750 से ऊपर सब सिविल करीबन सेम है,
आई डोंट नो, ये लोग 850 800 के पीछे पड़े रहते हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, आपको बैंक सेम रेट ही देगा और इससे कम सस्ती रेट तो मिलेगी भी नहीं। अजीत से मैं और सर मान लीजिए हाँ हाँ प्लीज। मान लीजिए किसी का सिविल खराब है पर उसके म्यूचुअल फंड 20 लाख के आसपास का है, तो वो उसको प्लेस करके निकाल सकता है ना? मैं ये समझा नहीं, वापस बताइए। मान लीजिए उनका सिविल खराब है, कहीं पर वो हम्म। डिफॉल्ट वगैरह किए होंगे, पर उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में 20 लाख से ज्यादा का है वैल्यूएशन, करंट वैल्यू। हाँ निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। लोअर सिबिल के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट सर। बिजनेस के कस्टमर्स को बहुत मुश्किल लोन मिलता है, तो आपके जो भी नॉन सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड या जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, उनको आप ये लोन बताओ, दे विल बी वेरी प्लीज्ड, राइट। बिगेस्ट थिंग इज, अगर आप कस्टमर को लोन नहीं कराओ, मेरा एक सजेशन है जो हमारे पार्टनर्स ने हमें दिया है, एंड एसेट प्लीज टीम विल वाउच फॉर इट, आप कस्टमर को लिमिट बता के छोड़ दो, जो शुरुआत हेलो की इतनी लिमिट है, एज सुन एज ही हेलो नोज देयर इज नथिंग एल्स रिक्वायर्ड, उसको लेना होगा तो वो ले लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स लाइक अनपेड? सर बहुत कम अनपेमेंट रेट होता है। आई डोंट, टोटल जितने ड्यू होते हैं उसमें से अराउंड 1% टाइप ही होते हैं जिनका, लेस देन 1% होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं पेमेंट होता है, बिकॉज इंटरेस्ट कुछ नहीं, 1 लाख पे 850 रुपये अप्रॉक्स, 862 इतने सबके अकाउंट में होते हैं। तो जनरली जो भी होता है उसमें से कुछ होते हैं नेग्लिजेंस की, कस्टमर भूल गया, पैसे नहीं रखे अकाउंट में, इस टाइप के रीजन होते हैं। तो वेरी लो इंटरेस्ट, बिकॉज कस्टमर सेगमेंट भी अच्छा है, लोगों के पास पैसे हैं। 850 रुपये तो सर मोटा मोटा सबके पास है, अगर कोई SIP कर रहा है। सो अनपेड रेट बहुत है। म्यूचुअल फंड सेल तो बहुत सर, लेस देन 100 भी सेल नहीं होंगे। आज हमारे पास अराउंड 20,000 कस्टमर्स है, नॉट इवन 100 कस्टमर्स का भी सेल ऑफ नहीं हुआ है, बहुत रेयर सेल ऑफ, बस मार्जिन खोलो किसी भी चीज के कारण। अगर कोई कस्टमर सेल ऑफ होता है सर, इट इज वेरी क्लियर, कस्टमर इज अवेयर, ही सेज कि आप सेल ऑफ कर दो, वॉट एवर रीजन मेरे पास पैसे नहीं है, एंड द पार्टनर इज ऑल्सो अलाइंड कि दिस इज ड्यू टू सो एंड सो रीजन। हेलो Hi, Pulash. Can just 1 minute? I'll just take 3 questions and then you can ask your question. You can Okay. type it in the chat box as well. Okay, we will take that. Kapil, there's one question that suppose in a fund I have a fund value of 6 lakh rupees and I have taken a loan of 1 lakh rupees. After a few days, I want to redeem for 4 lakhs for which I do not want loan. What will be the position in this case? In this case, very good example. In this case, since you want to keep 2 lakh as pledged and 1 lakh as loan amount, it is okay with me. You can unpledge the 4 lakh rupees as per your requirement. Because उस 4 lakh के against outstanding नहीं है, there is no outstanding against those 4 lakh rupees, so you can unpledge. So basically, whenever you unpledging, it says total outstanding amount into 2 plus whatever charges, whatever amount left after this, you can unpledge. So 6 lakh में से this is 1 lakh rupees into 2 lakh rupees, any other charge, let's say 500,000 rupees, rest everything you can unpledge. So you can approximately unpledge 4 lakh rupees. Okay. सर अनप्लेज पूरा स्कीम होगा या नंबर ऑफ यूनिट्स जितना चाहे उतना अनप्लेज कर सकते हैं? सपोज 5000 यूनिट्स है, हाँ, उसमें से मैंने 5000 यूनिट के ऊपर लोन लिया था, हाँ। अभी मुझे उतना नहीं चाहिए, अभी मुझे 2500 यूनिट के ऊपर ही चाहिए, तो 2500 मुझे अनप्लेज करना है। इज इट पॉसिबल? Yes, yes, yes. Partial unleaning is possible. 100% flexible. You can literally select इस स्कीम के मुझे 50 यूनिट करने हैं। ओके, थैंक ठीक है, यू। तो वो आप कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिखा था, आई थिंक शायद यू वांटेड टू जॉइन लेट in the manage limit section. You will, this is very exclusive to Volt, you will find this that you can literally select what you want to pledge, you can literally select what you want to unpledge. ठीक है, पूरा flexibility है उसके लिए सर। Okay, the next question is 2499 charge in Bajaj. 1499 sir, 1499 1499, sorry. The 499 charge is the like it 3 साल में एक बार लगता है या हर साल लगेगा? 3 साल में एक बार लगता है सर, फर्स्ट टाइम लग जाएगा, फिर वो नहीं लगेगा वापस। So renewal के टाइम पे ही आएगा for Bajaj. रिन्यूअल के टाइम That is an AMC charge. या दैट्स इट। हेलो तो बजाज में तो पहले लग जाता है, फिर 3 साल नहीं लगता, टाटा में 1 साल लगता है, और फिर वो रिन्यू करते हैं पैसे। Yeah, Pulash, please ask your question. हाँ, मैं मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया, उसके बिहाफ में आपने 1 लाख का प्लेज किया, लेकिन मैंने 50,000 का मान ली रिपे कर दिया, तो क्या 50,000 का वर्थ का मुझे अनप्लेज हो जाएगा म्यूचुअल फंड? सर दो क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट, अगर आपको 1 लाख रुपए लेना है तो आपको 2 लाख रुपए प्लेज करना पड़ेगा, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो, जो RBI का हाँ ठीक है, रिक्वायरमेंट है। आपने 2 नहीं लाख, हमें मैं आपका आ रहा हूँ उस पे एग्जैक्टली। सो
हाँ आपने 2 लाख प्लेज किया और 50,000 रुपए सॉरी 1 लाख रुपए ले लिए। अब आपने जी कहा कि मैंने 50,000 रुपए रीपे कर दिए। हाँ अब मुझे 50,000 रुपए रीपे करते तो मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है कि 50,000 जो बाकी बचा हुआ है इंटू हाँ 2 मेंटेन करना है, 2 गुना, आरबीआई का जो रूल है। तो मैंने 1 अच्छा लाख रुपए रखना है, बाकी 1 लाख आप चाहें तो अनप्लेज कर सकते हैं। अच्छा, वो अनप्लेज कहाँ से होगा सर? ऐप के थ्रू हो जाएगी? हाँ, जो आपका एसेट प्लस में आप गए उसी में सेक्शन में जाएंगे। जैसे आप हाँ ट्रांजैक्शंस और विड्रॉल का है, राइट में आपको मैनेज लिमिट भी दिख जाएगा। हाँ मैनेज लिमिट में आपको अनप्लेज का भी ऑप्शन दिख जाएगा क्लियर। मैं एक बार अगर आपको लगे तो आई कैन शो इट अगेन एवरी वे, देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन हाउ टू अनप्लेज। Yes, yes. Pledge unpledge पे काफी questions आ रहे हैं. So there is like, there are any impact on pledged on returns? Can we do pledge unpledge online? So I think you can take that section again, Kapil. हाँ, मैं एक बार होप माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, 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 Kapil. Okay, so for everyone please, मतलब I'll just do how it happens। 3 सेक्शन होते हैं आपको यहाँ पे, माय अकाउंट, ट्रांजैक्शंस और मैनेज लिमिट। माय अकाउंट में आप विड्रॉल रीपेमेंट पूरा करते हो, ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल्स विड्रॉल रीपे करना है किस अकाउंट में, डिजिटल सब कुछ दिखता है। ट्रांजैक्शंस आपके लिए होता है अगर आपको कुछ भी ट्रैक करना है ट्रांजैक्शंस डिजिटली तो आप कर सकते हो। स्टेटमेंट चाहिए तो आप ईमेल करके ईमेल पे भी मंगा सकते हो कस्टमर के। थर्ड होता है जो है लिमिट मैनेज करनी है मुझे। लिमिट मैनेज जब आपको करनी होती है तो आप क्लिक करेंगे तो आप इंक्रीज करनी लिमिट, 2 ऑप्शन है, या आपको देखना है मुझे लिमिट प्लेज या अनप्लेज करनी है। तो आप जाइए यहाँ पे व्यू डिटेल्स क्लिक कीजिए, सिंपल, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये लोड होगा आपका। और इट विल शो यू ऑप्शन की प्लेज मोर करना है जैसे मार्जिन कॉल हो, या अनप्लेज करना है, रिमूव प्लेज। मिडिल में माइनस करके बटन है रिमूव प्लेज। जो स्कीम आपके नीचे दिखाएगा यू क्लिक रिमूव प्लेज, इट विल से सेलेक्ट फंड्स एंड अमाउंट जो आपको करना है रिमूव। ओटीपी से वेरीफाई करो और फिर आपका स्टेटस यहाँ ट्रैक कर सकते हो कि ये 3 to 4 बिजनेस डेज में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आए, लेट्स से मुझे 2 स्कीम्स है यहाँ पे, एक्सिस ब्लू चिप एंड एचडीएफसी टॉप 100। आई वांट टू अनप्लेज एक्सिस टॉप 100। मैं आपको याद दिलाऊं मेरा आउटस्टैंडिंग एट द मोमेंट इज 730 रुपीज, ठीक है, मेरा प्लेज अमाउंट इज टोटल 48,000 अप्रोक्सीमेटली। तो मैं यहाँ पे अनप्लेज कर सकता हूँ, तो मैं पूरा भी कर सकता हूँ ये कि मैं पूरा अनप्लेज कर दूं, या फिर मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ 5,000 अनप्लेज करना है, जो लोअर क्वेश्चन था। 5,000 अनप्लेज करना होगा, क्लिक किया, इट विल शो मी कि आपने 5,000 सेट किया है। क्रेडिट लिमिट आपकी कितनी इंपैक्ट होगी, अपडेटेड क्रेडिट लिमिट क्या होगी, बिकॉज मैं 2,500 कम कर रहा हूँ, 5,000 हटा रहा हूँ, तो मेरी नई क्रेडिट लिमिट ये होगी। एंड इट विल से कंफर्म एंड गेट ओटीपी, बस अब ओटीपी ट्रिगर होगा और आपका रिक्वेस्ट चला गया, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इसको मैंने जो भी अमाउंट है, सॉरी, Are there any charges for unpledging नो partial? चार्जेस, नो सेपरेट चार्जेस फॉर अनप्लेजिंग, ठीक है। मैं एक बार आपको, अगर इसमें अगर आपका आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, मैं अगर सब सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मुझे खुद ही बोल देगा वी हैव अकोमोडेटेड द लास्ट वन एज पर क्रेडिट अलाउंस, ऐसे करके। तो आपने पूरा कर लिया है तो ऑटोमेटिक वो दे देगा। तो यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑल्सो एंड कीप दिस थिंग कि कैसे है। अगर आप कुछ आउटस्टैंडिंग और आप फिर भी अनप्लेज कर देंगे तो फिर वो शॉर्टफॉल में आ जाएगा, तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। Kapil, Yes. one more question. Loan facility available for NRI clients as well? एनआरआई के लिए एट द मोमेंट नहीं है, बिकॉज आरबीआई डज नॉट अलाउ एनबीएफसीज टू लेंड टू एनआरआईज। तो वो फिजिकल फॉर्मेट हो, डीमैट फॉर्मेट हो, किसी भी फॉर्मेट में एनआरआईज को एट द मोमेंट वी कैन नॉट प्रोसेस। If a customer, Can if you a please send the list of the category of A and B of the mutual funds where we can pledge or unpledge according to their categorization? Do you have that one? सर ये जो आपका कैटेगराइजेशन कॉन्सेप्ट होता है ना, ये स्टॉक्स में वैलिड होता है, म्यूचुअल फंड में कोई कैटेगरी नहीं होती। आपकी 5,000 प्लस स्कीम्स ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड है, विच इज 95% ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एयूएम। आप जब प्रोसेस में करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो जितनी स्कीम्स है कस्टमर की पैन पे सारी फुल करके आपको मैक्स लिमिट दे देगा, ठीक है। एसेट प्लस, आप इस पे प्लीज दिखाना चाहिए, एसेट प्लस में जब आप क्लिक करते हैं ना, तो आपको दिखता है कस्टमर के लिए कितनी यूनिट्स अवेलेबल है जब आप रिडीम पे जाते हैं। कैन यू शो इट, अगर आपके पास एसेट प्लस में, मुझे सुरेंद्र हैड शोन मी दिस, इफ यू सिलेक्ट अ कस्टमर फॉर रिडीम्शन और एनीथिंग, इट शोज यू अप्रूव्ड लिमिट देन एंड देयर।
तो वो है, बट आप जो कॉन्सेप्ट करें कैटेगरी ABC का, वो स्टॉक्स में होता है, कैट A, कैट B, कैट C, कैट D, डिपेंडिंग ऑन देयर वॉल्यूम फ्लक्चुएशन। म्यूचुअल फंड्स में सर AMC रिडेम्पशन गारंटी करता है, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ABC। आप मान लो 5,000 प्लस है, 95% ऑफ द इंडस्ट्री अप्रूव्ड है, यू कैन सिंपली गो अहेड, सी इट एंड प्रोसेस इट, जो भी अप्रूव्ड है। And this list gets refreshed around monthly to quarterly, depending on this thing, automatically refresh होती रहती है। Yeah, thanks. There is one more question. If a customer gets default to pay the interest, in that case, all the pledged mutual funds shall be sold by the pledged, or only the interest amount shall be sold? Only so all units are not sold, जो मैंने I think किसी ने पहले भी पूछा है, all units are not sold, only interest amount and overdue charges, since your bounce तो bounce charge जो होगा प्लस अगर सिर्फ उतना ही अमाउंट सोल्ड होगा। मान लो आपका 10,000 का इंटरेस्ट है, बाउंस चार्ज लगा 500 प्लस GST जो भी, प्लस कुछ जो भी पीनल इंटरेस्ट लगा जो भी ना, तो 10,500 मान लेते अप्रॉक्स। तो आपका 10,500 रुपए प्लस कुछ ऑपरेशनल 100-200 जो भी है वो चार्ज लगेगा, दैट इज इट। पूरा 10 लाख का या 50 लाख का म्यूचुअल फंड नहीं सेल होगा, वो नहीं कर सकते ना। आप समझ रहे, आपने 10 लाख का लिया, तो 10,000 का इंटरेस्ट में आप डिफॉल्ट करेंगे तो पूरा 10 लाख नहीं बेच दिया जाएगा, तो वो इतना Okay, yes, thank you. Whether the processing fees will be charged on the opening the credit line, or will it be charged during the withdrawal? इट इज चार्ज ओपनिंग द क्रेडिट लाइन, जैसे आप करते हैं तभी लगता है। अगर आपने ओपन किया और उसी टाइम विड्रॉ डाल देते हैं चार्जेस पहले, तो जो पैसा आता है वो कट के आता है। अगर आप विड्रॉ नहीं करते, जैसे आपने 2-3 महीने विड्रॉ नहीं किया, तो जो भी फर्स्ट मैंडेट हुआ तब ये आपके अकाउंट में अप्लाई होके आपके फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू के टाइम निकाल ले, तब मैंडेट के थ्रू निकाला जाता है। बट वॉट एवर वे इज, एक ही बार लगता है कस्टमर। सर व्हाट इफ अगर कोई मान लीजिए ऑल द EMIs डिफॉल्ट करता है, पूरा का पूरा 12 का या फिर 8-9 डिफॉल्ट कर लिया और कंटिन्यूअसली वो डिफॉल्ट करता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि उसका पूरा जितना प्लेस्ड हुआ या यूनिट सब कुछ सोल्ड आउट हो जाएगा? हाँ, मतलब आप कस्टमर का इंटरेस्ट नहीं पे करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट बेच बेच के रिकवर करते रहेंगे, राइट? सो दैट इज, वो मतलब चलता रहेगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ जो भी है टिल इट इज। So do you provide the loans for funds which are invested directly with the AMCs? यस यस, एवरीथिंग सर। कस्टमर ने कहीं से भी किया हो, चाहे बैंक के थ्रू किया हो, और आपके साथ, मतलब बहुत केसेस में होता है कस्टमर का जैसे लॉकर है या कुछ रिलेशनशिप है, तो देख लू 50,000 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे जब आप उसका प्रोसेस करा रहे होंगे तो आपको उसको 100% पोर्टफोलियो आएगा। Okay, thank you, Kapil, for such a wonderful insight. Hello. Yes, Lata ma'am, I think yes, you can take your question, please. Yeah. Any amount can be pledged and any amount can be taken loan. Yes ma'am, you can select whatever you want to pledge. आपके पास जो भी होल्डिंग्स होगी, it will all show up and you will have the option to select what you want to pledge, like a tick box होता है और एडिट करने का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। और आपने जब लिमिट सेट कर दी तो आपके ऊपर होता है आप कितना निकालना चाहते हैं। मिनिमम इज 5,000, मैक्स इज जितना लिमिट है। तो यू कैन सेलेक्ट इफ आई वांट टू विड्रॉ 7,000, तो यू कैन विड्रॉ 7,000। इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग टू। सर एसेट प्लस टीम से क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए हमारे साथ कुछ लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और कुछ डायरेक्ट में हैं, तो उनको कंबाइन करके हम एसेट प्लस के थ्रू वोल्ट से उनको दिला सकते हैं लोन्स वगैरह या नहीं कुछ? सर वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस क्वेश्चन। आप आपके RM को ये क्वेश्चन जरूर मैसेज कर दीजिएगा, ये आपको उनके तरफ से 100% आंसर उसका मिल जाएगा। ओके, श्योर, थैंक यू। Yes, yes. Okay, I hope there are no more pending questions. Thank you, Kapil, for such a wonderful session. I hope all of our partners have got a lot of information, and a lot of their queries have also been solved. We look forward for their continued participation in this and your help in making them grow their business and working together. So thank you once again for coming here and having this session with us. Thanks everyone.